Hello everyone, hello dear students, Neha ma'am here. So today we have to start chapter number 4, Faith of Value Education, that is chapter number 4, Faith. Now what faith means? Faith means complete trust or confidence in someone or something. Whenever you are having complete confidence or trust in any person or in anything, it means faith. It means when in Hindi we can say विश्वास. जब आप किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ में आपका कंप्लीट विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज फेथ. So let's start our theme talk now. General talk. Faith is the essence of things hoped for. फेथ आपका एसेंस मीन्स इंट्रिंसिक नेचर है, ये आपका नेचुरल एबिलिटी है दैट डेवलप इन योर पर्सनैलिटी एंड दैट ऑल होप्ड फॉर. It is a persistent embrace of our highest inspiration and reasoning, a humble test that they can become our reality. और आपका ये जो फेथ है ये आपका कंटिन्यूइंग प्रोसेस है टू एक्सिस्ट, जो आपका कंटिन्यू चलता रहता है लाइफ पर. दिस वर्ड डेवलप, द फेथ डेवलप इन योर पर्सनैलिटी कंटिन्यूइंग टू योर होल लाइफ एंड दैट मेक्स यू reach to the highest level, highest aspiration to make your dreams true, to make your dream to become real. Fate makes us tenacious. Tenacious means holding tightly. It means if you have your trust and faith in you, then it will give. Once a faith has been developed, then it will give you strength, strong. It will make you strong to forward your expectations, to fulfill your dreams, to bear fruit, to reach your aim, to make everything possible through your efforts, through your hard work. And once faith has been developed, then definitely you will do what you want to do, what the dreams you want to become a true. For example, when we sow a seed, then we expect to give a good fruit, because and it will give a good fruit then only when you will water it daily, when you will give it water, जब आप उसे पानी दोगे, whenever whatever you will give the proper sunlight, you will provide proper sunlight, all the things necessary for the growth of the plant, then only you will get after few days with your care and love, it will give you the bear fruit. It will bear a good fruit, sweet fruit. Same way, if you are doing a good efforts with your life, so definitely you will get a sweet fruit. It means you will reach your destination. You will get whatever you want to get. What you want, you will get in your life with your efforts and with your faith, which develop in your personality. It is the distant light that shine when all around us seem dark and full of sorrow. ये वो लाइट है, ये वो किरण है जो चारों तरफ आपके that shine all around us, जो आपके चारों तरफ डेवलप होती है. when you are in darkness, जब आप किसी भी दुख में होते, परेशानियों में होते, प्रॉब्लम्स में होते, आपकी चारों तरफ आपको लगता है now I am in a darkness, now I am in my very bad moments, and now nothing can be possible. In that situation, if you have faith with you, then definitely you will reach again whatever you want to be, and everything, the darkness will change into lightness in your life. Through faith, we keep our eye on our destination rather on the hardship to be faced along the road. If you have faith, confidence, trust in you, then definitely you will focus on your destination, your aim, our work you have to do, and it will not depend कि whatever hardship you will face along the road, whatever hardship you will face, you will directly reach it. You will face a different hardship of the life, but डेफिनेटली यू विल रीच इट. आपको जो पाना है आप पाएंगे, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी डिफिकल्टीज का फेस करना पड़े. फेट गिव्स सब्सटेंस टू अवर ब्रेन.
फेथ के सब्सटेंस ऑफ आवर ब्रेन, फेथ हमें, हमारे ब्रेन को एक सब्सटेंस है वो जो हमें अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प करता है, एंड इट विल टीचेस अस व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर आवर लाइफ. So I hope you have understood the word of faith. Now we are going to know more about this term through a story. The power of prayer. Power of prayer means जो हम prayer, हमारी कभी कभी जो पूजा होती है, जो हम प्रे करते हैं, इफ़ वी हैव ट्रस्ट इन गॉड तो डेफिनेटली द गॉड विल आंसर अस. गॉड विल, जो हमारा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो अगर वो डेवलप है तो डेफिनेटली जो हम पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इट विल ऑल्सो कम ट्रू इन आवर लाइफ. वंस देयर वाज अ सीवियर फैमिन इन अ सर्टेन विलेज. एक बार एक सीवियर फैमिन थी, एक हर जगह पानी की कमी हो गई, फूड की स्कार्सिटी हो गई, ठीक है, ऑल अराउंड एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड वाज देयर ऑल अराउंड इन अ विलेज. फॉर मैनी मंथ्स इट हैज़ नॉट बीन रेन. बहुत महीनों से बारिश नहीं हुई थी. द लैंड वॉज एब्सोल्युटली ड्राई. जो लैंड थी वो एब्सोल्युटली ड्राई हो गई, सूखी पड़ गई. एंड द पीपल वर स्टार्विंग. जो वहाँ के लोग थे वो सफ़र हो रहे थे. दे वर सफरिंग एंड डाइंग फ्रॉम अ हंगर. वो भूख के मारे मरे जा रहे थे इन द विलेज. द वेल्स इन द विलेज हैज़ ड्राइड अप टू. और जो वहाँ के वेल्स थे वो भी सूखे पड़ गए थे. एंड द वाटर वॉज वेरी स्कार्स. और जो वहाँ का पानी था वो पानी क्या, स्कार्स मीन्स डिफिशिएंट इन क्वांटिटी और नंबर कंपेयर टू द डिमांड. जितनी डिमांड थी, जितनी वहाँ पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन को जितनी नेसेसिटी थी, उसमें उनकी नेसेसिटी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, पूरी नहीं हो पा रही थी. वहाँ डिमांड के अकॉर्डिंग उतनी उनकी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था सब लोगों के लिए. सो देयर वाज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. वहाँ पानी की और खाने की दोनों की कमी हो गई थी. लोग भूख के मारे मर रहे थे. द पीपल ऑफ दैट विलेज हैज़ गिवन अप होप. अब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी होप, अपनी उम्मीदों को छोड़ दिया था. एंड हैड रिजाइन टेम्पल टू डाई. और उन्होंने उम्मीद कर ली थी, आशा कर ली थी कि नाउ नथिंग विल कैन हैपन प्लीजेंट टू अस. कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता हमारे साथ. नाउ वी विल डाई टू सफर ऑल दिस प्रॉब्लम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. नाउ व्हाट हैपेंड, वन डे अ सेंट केम टू द विलेज. एक दिन क्या हुआ, एक सेंट विलेज आया, गांव आया. सेंट अ होली पर्सन. सेंट किसे कहते हैं, होली पर्सन दैट हैव अ फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड एंड दैट ऑल द टाइम यूज्ड टू द प्रेयर्स. He was shocked to see the condition of the people there. वो एकदम shocked हो गया ये देख के कि वहाँ के लोगों की कंडीशन क्या हो रही थी. Why don't you all pray to God? अब वो कहते हैं, लोगों से, विलेजर्स से कहते हैं, आप लोग क्यों, आप सब लोग भगवान की पूजा नहीं कर सकते. Why don't you all pray to God? Just pray to God faithfully. विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करो and definitely God will help you out in this situation. Even he can't help us now was their answer. There was no more hope left in them. अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं he can't help us now. वो अब हमारी मदद नहीं कर सकते. वो उनका आंसर था विलेजर्स का. There was no more hope left in them. उनमें कोई आशा ही नहीं बची थी, उम्मीद नहीं बची थी. वो इतने डिमोटिवेट हो चुके थे, इतने होपलेस हो चुके थे कि अब उन्हें भगवान पे भी विश्वास नहीं था. Now next what happened? The saint advised them not to give up the hope and said that God is the only one who could help them. अब सेंट कहते हैं कि अपनी अभी भी आप उम्मीदों को मत छोड़ो. आप इस होप को इतनी जल्दी आप गिव अप नहीं कर सकते हो. गॉड एक ऐसे पर्सन है, गॉड इज द ओनली वन, जो आपकी अगर कोई मदद नहीं कर सकता तो भगवान जरूर मदद करता. कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान. सेम वे कि इफ नो वन कैन हेल्प देन डेफिनेटली गॉड विल हेल्प यू वन डे. He asked all of them to accompany him to the old banyan tree and pray to God. उन्होंने सबसे बोला कि वो banyan tree जाएं और banyan tree के पास जाने के बाद सब मिलके God से pray करें. Then he added, but remember you must really believe in God and in the power of prayer. लेकिन इस बात का आप ध्यान रखना, अगर आप भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हो तो आपको पहले विश्वास रखना चाहिए कि भगवान करेंगे. क्योंकि जब आप विश्वास रखोगे then only you can do the true prayers with trust. अगर आपके अंदर ट्रस्ट है किसी के लिए तभी आप अच्छे से प्रेयर करोगे और बिल्कुल दिल से करोगे. और जो दिल से की गई प्रेयर होती है वो डेफिनेटली आपकी एक्सेप्ट होती है. तो गॉड विल डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट प्रेयर इफ यू विल डू द प्रेयर विथ फुल फेथ ऑन गॉड. देन ओनली योर ब्लेसिंग्स विल
be true. God will bless you and God will listen to you if you are really have a faith in God. Then only God will listen to you. If you don't have the faith, if you will not pray with the faith, आप विश्वास के साथ अगर pray नहीं कर सकते, then it will not come true. इसका मतलब आपको पहले अपने अंदर faith, trust develop करना पड़ेगा, तभी को भगवान आपकी सुनेगा. So he asked all of them to accompany to him to the old banyan tree and pray to God. And he only told him that if you have to pray to God, then you have to be believe in God. आपको भगवान में विश्वास करना पड़ेगा और उसकी पावर में. And if you have faith, अगर आपको उसमें faith है, विश्वास है, then God will listen to your prayers and answer them. तो definitely surely God आपकी prayers को सुनेंगे और आपको आंसर देंगे, आपको उसका जवाब देंगे. ओके, तो कम विथ मी, इसलिए मेरे साथ चलिए. आई विल टीच यू हाउ टू प्रे. मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रे करना चाहिए फॉर रेन. ठीक है, और कैसे आप प्रे करेंगे भगवान से, बारिश के लिए प्रे करें और डेफिनेटली इट विल हैपन, बारिश होगी. नाउ व्हाट हैपेंड, द पीपल बिगेन टू फॉलो द सेंट. आप लोगों ने सेंट को फॉलो करना शुरू कर दिया. सम वेंट विथ रिन्यूड हो, कुछ लोग तो मतलब दोबारा से एक आशा उनमें जगी कि हाँ ओके समथिंग विल बी विल डेफिनेटली हैपन, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा. तो सम वेन विद रिन्यूड होगा, नए सिरे से उन्होंने आशा जगानी शुरू की अपने में. बट मोस्ट अदर्स हैव अ डाउट इन देयर हार्ट, लेकिन काफ़ी लोगों में डाउट्स था कि होगा भी नहीं होगा. देयर वॉज वन गर्ल अमंग द पीपल हु हैड लिसन टू द सेंट. उनमें से उन विलेजर्स में से एक छोटी बच्ची थी, एक छोटी लड़की थी. उसने सब कुछ अच्छे से सुना, बहुत ध्यान से सुना जो भी सेंट ने बोला. शी रेन टू हर हाउस, वो अपने घर भागी. एंड रिटर्न विद एन अम्ब्रेला, और वो एक अम्ब्रेला लेके आई. देन शी फॉलो द सेंट, उसके बाद अम्ब्रेला लेने के बाद वो सेंट को उसने फॉलो किया, उन्हें उनके साथ चली. एज दे नियर द ओल्ड बनियन ट्री, जैसे कि वो ओल्ड बनियन ट्री के पास आए, द सेंट नोटिस द अम्ब्रेला इन द गर्ल्स हैंड. सेंट ने ये नोटिस किया कि एक छोटी सी बच्ची के पास अम्ब्रेला था, यानी कि उसमें एक उम्मीद थी कि बारिश ज़रूर होगी और मैं गीली होंगी, और मैं इसलिए वो उसने अम्ब्रेला को अपने साथ कैरी किया था. लिटिल वन, वाई हैव यू बॉट योर अम्ब्रेला विथ यू टू प्रे, ही आस्क्ड जेंटली. उन्होंने पूछा कि बेटा आप अपने साथ अम्ब्रेला क्यों लेके आए हो. बट सर यू टोल्ड अस दैट वी वुड प्रे टू गॉड फॉर रेन. तो बच्ची कहते हैं सर आपने ये बात बोला था कि हम भगवान से पूजा इसलिए कर रहे हैं जिससे बारिश हो. आई बॉट द अम्ब्रेला बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गेट वेट वाई रिटर्निंग. द लिटिल गर्ल सेड इनोसेंटली, मैं अम्ब्रेला इसलिए लेके आई हूँ जिससे मैं गीली नहीं होना चाहती जब मैं वापस घर जाऊँ. ये इट मीन्स गर्ल को एक पूरा विश्वास था, ट्रस्ट था उस छोटी सी बच्ची को कि बारिश ज़रूर होगी, भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे. विद टीयर्स इन हिज आईज, अपने उनकी ये सुनते ही सेंट की आंखों में आंसू आ गए. तो सेंट लिफ्टर हब, सेंट ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया. इवन ही हु बिलीव्ड इन गॉड हैड टू बो हिज हैड इन फ्रंट ऑफ द लिटिल गर्ल फॉर द एब्सोल्यूट फेथ व्हिच द एल्डर्स डिड नॉट हैव. ये देख के उनका से माथा टिक गया कि मतलब उन्हें इतना विश्वास था भगवान में उस सेंट को. लेकिन सेंट अपने अंदर इतना विश्वास था भगवान में, लेकिन उस बच्ची को देख के उनका फेथ, उन्होंने ये कि इस बच्ची को इतना विश्वास है जितना कि इन बड़े लोगों को भी नहीं है, यानी कितना ट्रस्ट करती है ये बच्ची. In all her innocence, the little girl had complete faith that it would rain. उस बच्ची को पूरी उम्मीद थी कि बारिश ज़रूर होगी, भगवान हमारी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सुनेंगे, वो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे. और वो ये देख के शौक थे कि इतने बड़ों में, इतने समझदार होने के बाद बड़ों में विश्वास नहीं जितना उस बच्ची में था. She was so sure, वो इतनी श्योर थी that her prayers would be answered and she had to come with umbrella, वो umbrella लेके आई थी. The saint felt humbled by the simple word. saint humble हो गई words देख के and absolutely faith देख के उस जो बच्ची में था. He turned towards other people and said, this is what I meant when I said you should pray to God with faith. ये बच्ची को देखते हुए वो बोलते हैं ये वो विश्वास है जो मैं जगाना चाहता था आप में, और जो मैंने बोला था कि अगर आपको भगवान से प्रे करना है तो ये विश्वास डेफिनेटली डेवलप करो, जैसे इस छोटी सी बच्ची ने किया कि हाँ ज़रूर भगवान हमारी सुनेंगे, भगवान पे ट्रस्ट करो. देन ओनली योर ब्लेसिंग विल कम ट्रू. एट वर्स्ट I wanted to have all of you to pray to God. पहले मैं चाहता हूँ आप सब लोग प्रार्थना करें. But now seeing this little girl's faith, I think only she
should pray along with me on behalf of you. लेकिन पहले मैं चाहता था कि आप सब लोग मिलके प्रार्थना करें और जिससे भगवान सुने, लेकिन अब मुझे इस बच्ची का विश्वास देख के लग रहा है कि यही बच्ची मेरे साथ प्रेयर करेगी, एंड डेफिनेटली इसका विश्वास इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, फेथ है ऐसे भगवान में कि डेफिनेटली हमारी प्रेयर सक्सेस होगी एंड गॉड विल हेल्प अस आउट. So the little girl started to pray in earnest. लिटिल छोटी सी बच्ची ने सीरियसली और डिटरमाइंड होकर प्रे करना शुरू कर दिया. क्वाइट अमेजिंगली शून थंडर स्टार्टेड गेटिंग इन द स्काई. और जैसे स्टार्ट हुई प्रेयर वैसे ही थंडरिंग होने लगी, लाइटनिंग होने लगी स्काई में. एट लास्ट क्लाउड बर्स्ट एंड रेन पोर्ड आउट ऑन द अर्थ. एट लास्ट क्लाउड बर्स्ट हुए और जो बारिश थी वो पोर्ट हुई अर्थ पे, बारिश होने लगी. ओ हाउ इट रेन्ड एंड रेन्ड. ये सब देख के एवरीवन वाज सबने बहुत इंजॉय किया, बहुत शॉक थे. द पीपल जम्प्ड जॉय एंड डांस इन द रेन. लोग जब खुशी के मारे कूदने लगे, डांस करने लगे, बिकॉज गॉड हैज लिसन दैम, लिसन देयर प्रेयर, लिसन द प्रेयर ऑफ द लिटिल गर्ल एंड द सेंट. द पीपल ऑफ दैट विलेज हैज लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन दैट डे फ्रॉम द लिटिल गर्ल. उस दिन से लोग, विलेजर्स के लोगों ने एक लेसन सीखा बच्ची से कि वी शुड हैव अ फेथ इन. अगर हम में विश्वास है भगवान में, देन एवरीथिंग कैन हैपन इफ वी वांट. जो भी हम चाहते हैं वो डेफिनेटली होगा. गॉड सेज माय थॉट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड फार बियॉन्ड एनीथिंग यू कुड इमेजिन. भगवान से कहते हैं कि जो तुम सोच भी नहीं पाओगे, मेरे थॉट्स वो हैं बिल्कुल तुम लोगों की सोच से बहुत दूर है, बहुत अलग है. जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो चीज़ पॉसिबल कर सकता हूँ मैं. सो फेथ इन गॉड एक्सेप्ट हिज वेज. इसलिए भगवान कैसे करेगा ये मत सोचिए, ये सोचिए कि उसमें विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है. वो एक दिन आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा. तो आई होप आपको यू हैव इंजॉयड दिस स्टोरी एंड दिस इज़ माई moral of the story is this: have faith in God and he will do what he want. What you want, you will definitely get. So everyone, thank you. If you like this, now your homework, you have to do the exercises and we will discuss in the next video. Thank you. Thank you everyone. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.